accordingly. I want everyone to just feel comfortable, Yeah. feel positive, feel hopeful that something is good going to happen after listening. Because Yeah. we're trying to make you understand that whatever you feel impossible or whatever you feel possible is truly possible. So I would request everyone, like if they have any question or any point they want to make, they just put into the chat box. So from there we will take it out. So Okay. This admit reminder will keep on ringing, right? So we don't have to worry about it. yeah, Not to delay the things, let's talk about the basics about what we're wanted to go. The topic title is chosen in such a way that people might not understand what exactly we're dealing with. But we're trying to talk about basic about autism and goal setting about autism and how to decide exactly. So I hope everyone may not be on the same page when you start the talk, because everyone has a kid of different ages and every parent may be of different level of expertise in managing the autism. And so many medical parents may also be there around. So to keep the things in a different perspective, I will just try to say that I will not use any of the medical terms throughout my talk. I'll preferably just try to make you understand exactly what is there and how we go about it without using the word even autism. Right? So let's not get, because once you call it as autism, you get a label that, okay, I'm stuck. I don't know, there's no development. I'm stuck. Okay, I'm happy with having a certificate, some commission, whatever you call the income tax related somewhere, redeems, which practically of no use to our life having a UDID card, which government says you have it, but what? Every year you keep on. So what I want you to understand that you start looking these children in a different perspective. A simple way to understand is that even if you feel that your child is Einstein, even if you feel that your child is the highly special child and he may click after 40 years, 50 years, whatever you may feel like, we have to understand that at present, he is not able to enjoy a family life with us. At present, he is not a family member with us. And why he is not yet a family member with us? Because yet he is not behaving like the all other humans do. Even if you are a superhuman, when you are with the humans, you have to behave like humans. Then only humans will accept them into your human community. And there should be nothing wrong in forcing or in saying that my child should be acceptable. There's nothing wrong in it. Why? Why it should be wrong? If he is my child, why can't he be like me? Why, if he's a human baby, why can't he be like a human baby? Why can't he be a family member? Why can't he just look, listen, understand, communicate like all of us do? And exactly when you want that, when all of us are working towards the same thing, जब हम सब इसी के पीछे भाग रहे कि मेरा बच्चा देखेगा, बैठेगा, सुनेगा, समझेगा कब, मेरा फैमिली मेंबर कब बनेगा, तब हमको ध्यान में रखना है कि कभी भी मेरे बच्चे को स्पेशल मान के खुश नहीं होना है। भैया मेरा बच्चा तो स्पेशल है, मेरा बच्चा देखता नहीं है, मेरा बच्चा सुनता समझता कम है, वो स्पेशल, कुछ फायदा नहीं होगा इसमें से। बच्चे को हमेशा घर में रखकर हम बच्चे के लिए जेल बना रहे हैं, हम उसको कंफर्ट जोन में रखकर उसके लिए कंफर्ट जेल बना रहे हैं। हमें बच्चे को दुनिया के साथ मिक्स होने के लिए तैयार करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए तैयार करना पड़ेगा, बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तभी हम फैमिली में एक्सेप्ट होगा, तभी दुनिया में एक्सेप्ट होगा, तभी स्कूल में एक्सेप्ट होगा। तो हमें बच्चे की लाइफ या बच्चे के पेरेंट्स की लाइफ जेल नहीं बनानी है बच्चे के पीछे, हमें बच्चे को मिक्सअप होने के लिए लगा है। एक तरह से मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑटिज्म में खाली दो ही मेजर शिकायतें होती है, सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन, संवाद और सामाजिकता। ये दो शिकायतें होने का कारण एक ही होता है कि बच्चा हमारे साथ जुड़ता नहीं, कनेक्ट नहीं होता। तो चाइल्ड इज नॉट कनेक्टेड, दैट्स व्हाई इज नॉट कम्युनिकेटिंग, दैट्स व्हाई इज नॉट सोशलाइजिंग। हम में से भी कोई कल आपके साथ है, आप जहां पे भी काम करें, आपका कोई भी एम्प्लॉय हो, आपका कोई भी कलीग हो, आपके साथ कल से कनेक्ट करना बंद करेगा, कम्युनिकेट करना बंद करेगा, सोशलाइज करना बंद करेगा, क्या होगा उसका? वो अलूफ बनेगा, पेपर के साथ खेलते बैठेगा, टेबल पे सर फोड़ेगा, ये तो किसी और का सर फोड़ेगा, गुस्सा करेगा, नॉन स्पेसिफिक चीज जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव इश्यू, वो तो सबके साथ हो सकते हैं। जब हम ह्यूमन की तरह ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हम अनयूजुअली जो भी सिग्नल मिलते हैं डाइवर्ट हो जाते हैं, बॉडी से सेंसरी डाइवर्जन होता है, तो बच्चा अनयूजुअल सेंसरी एक्शंस, मूवमेंट्स, एक्टिविटीज करने लगता है जो हम नॉर्मल ह्यूमंस को समझ में नहीं आती। ये तभी होता है जब हम कनेक्ट नहीं होते किसी के साथ या communicate नहीं होते। सीधी बात है, एक
नई नई वाली दुल्हन की शादी हो गई है, और समझो हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं रोज, लेकिन वो देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। क्या होगा उसका? डिप्रेशन में जाएगी, अलूफ बैठेगी, गुस्सा करेगी, प्लेट मारेगी, पानी का ग्लास गिराएगा। अरे इस बहाने तो देखो मेरी तरफ, इतना भी नहीं करता तो खुद का सर फोड़ेगी या लोगों का सर फोड़ेगी। ये सब सेंसिटिव इश्यूज होते होते हैं। So ultimately, we develop all problems related to not getting connected with the human to human being. जब दो सजीव एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं हो कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उनके बीच में संवाद होना पॉसिबल नहीं। जब संवाद ही नहीं होता तो सामाजिकता दूर की बात है, और संवाद और सामाजिकता दोनों नहीं होते तो सेंसिटिव इश्यूज बनते हैं। तो जब ये सब होता है और संवाद सामाजिकता दोनों नहीं होते, सेंसिटिव बनते हैं, हम इसको बोलते हैं हाँ भैया ये स्पेक्ट्रम में है। ऐसे बोलने का तरीका, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट इसी तरह से होती है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, भगवान ने एक हार्डवेयर बॉर्न किया होता है, नया नया अपने लैपटॉप ऑर्डर किया, आ गया घर पे। रोज खाली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता, ना उसमें ऑफिस डाला है, ना उसमें म्यूजिक प्लेयर डाला है, ना उसमें प्रोग्राम डाले जो रन होने चाहिए। ये सब प्रोग्राम्स रन होने के लिए हमको उसके सीपीयू को रिसेप्टिव बनाना पड़ता है। तो हम कुछ प्रोग्राम ड्राइव लगा के ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, प्रोग्राम्स डालेंगे, या फिर कोई गेम्स डालेंगे, तभी अंदर कनेक्शंस बनेंगे, तभी अंदर को सॉफ्टवेयर बनेगा, तभी उसकी डेवलपमेंट दिखने लगेगी कि कैसे परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस तभी आती है जब हम इनपुट लेने के लिए तैयार होते हैं। जब इनपुट ही नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। इसलिए सबके सब रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्री इनपुट के बेसिस पे चल रही है। ये इनपुट दो, इनपुट दो, इनपुट दो, लेकिन हमें इनपुट क्या चाहिए? कनेक्शन, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन। मतलब जो इनपुट खाली दो सजीवों के बीच से मिल सकता है, कनेक्शन, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन, उसके बजाय हम सब इनपुट अगर निर्जीव वस्तुओं के साथ से देने लगते हैं तो हम कनेक्शन, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो इनपुट लेने के लिए बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, उसके कंप्यूटर का सीपीयू इनपुट प्रोसेस करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, ताकि सीपीयू की कैपेसिटी है पेंटियम 2 आपकी, और आपने बनाना इंटेल 7, आपने लगाया 128 GB का पेन ड्राइव, खाली 125 MB रीड होगा पेंटियम 2 में। तो सेंसरी ओवरलोड दोगे तो सीडी प्लेयर भी जाम हो जाता है, घूम करने लगता है, कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम नहीं चलता, सब हैंग हो जाता है, माउस घूमते रहता है गोल 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 गोल। तो ऐसे ऑटिज्म का बच्चा घूमते रहता है। तो हमें सेंसरी को स्ट्रीमलाइन करना है। सेंसरी को बोलते हैं हम ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं वो हम लेते हैं, दिमाग में जाके इकट्ठा बनते हैं, तभी उनका ज्ञान बनता है। जानकारी लेने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं। जब जानकारी आती है तभी हम इस दुनिया को पहचानते हैं। तो लाइफ के जन्म के बाद भगवान ने ब्रेन को एक स्पेशल तरीके से बनाया हो जाता है कि एवरी सेकंड 1000 कनेक्शन दिमाग में बनते रहते हैं नेचुरल एल्गोरिदम में। पहले 1000 दिन लाइफ के, वैसे सेकंड के 1000 दिन जब 2 महीने के लिए बनते हैं तो बच्चा नजर मिलाने लगता है और हंसने लगता है। 4 महीने के लिए बनते तो सुनने लगता है, 6 महीने के लिए बनता है तो आग करने लगता है, 10 महीने का बनते तो उंगली दिखाने लगता है, 12 महीने के बोला तो हाँ पापा बोला। ये सब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की, सीखने वाले सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट। सो सीखने के लिए रिसेप्शन जरूरी है, और रिसेप्शन के लिए जरूरी होता है कनेक्शन। कनेक्शन जो होता है अलाइनमेंट पोस्चर, जिसको हम बोलते हैं पोस्चर ऑफ लर्निंग। 2 महीने तक बच्चा हिल नहीं पाता है, देखो सुनो, देखो सुनो, देखो सुनो, खाली देख सुन के हम सिग्नल दे रहे हैं समझने के लिए। हम दुनिया की जानकारी ले रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं की जानकारी ले रहे हैं, वातावरण की और एनवायरनमेंट की जानकारी ले रहे हैं। जब तक हमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं बनती है तब तक हम लिविंग एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं ले पाते। क्योंकि लिविंग एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, डिफिकल्ट होता है, एवर चेंजिंग होता है, कलर बदलने वाला होता है, कपड़े बदलने वाला होता है, बातचीत करने वाला होता है, difficult होता है बच्चे को समझने के लिए। इसलिए पहले साल में बच्चे को हाँ फैन यहाँ पे, क्लॉक यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे, खाना यहाँ पे मिलेगा, दूध यहाँ पे मिलेगा, बस यहाँ चार्जिंग डिस्चार्जिंग चालू होता है, बच्चा रोबोट के जैसा। जब कनेक्शन बनने लगते तो जान आने लगते तो बच्चे दिखने लगता है कि हाँ अभी बच्चा पहचानता है मम्मी को, अभी दादी को पहचानता है, अभी मैंने सीटी बजा वो किया, उसको भूख लगी तो मैंने मुंह किया। तो ये सब एक तरह का कम्युनिकेशन बनता है। तो इसी तरह से एट द एंड ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो बनता है वो होता है उंगली से। जैसे मैंने बताया 2 महीने का बच्चा का कम्युनिकेशन है नजर मिलाना 2 सेकंड, 4 महीने का बच्चा 4 सेकंड, 10 महीने का बच्चा 20 सेकंड नजर मिलाता है, 6 महीने का बच्चा आवाज को रिस्पॉन्ड करता है,
रेसिप्रोकेट चालू हो जाता है। तो 10 महीने का बच्चा उंगली से दिखाता है। उंगली से दिखाना एक सबसे बढ़िया कन्वे करने का एक साधन है। हमें कुछ चाहिए, बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी नीड कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक बच्चा अपनी नीड कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा उंगली से, तब तक भाषा आना तो दूर की बात है। मतलब सबसे पहले बच्चे को निर्जीव की जानकारी हो गई, सजीवों की जानकारी होने लगी है, अपनी जरूरत पहचानने लगा है, कुछ है तो दिखाने लगा है। यही डिलेड है तो आगे गाड़ी जाती नहीं है। तो जब भी हम रिजल्ट्स या इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हैं तो हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चा हमें तब देखे तो हाँ देख रहे हैं, हाँ कनेक्ट हो रही है, ये तो है, हाँ, ये तो मम्मी है, रोज दूध पिलाते थे, मम्मी ने सिटी बजे, हाँ कनेक्ट हो गए, रिस्पॉन्ड करने लगा, रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, रिस्पॉन्डिंग टू नेम कॉल 8 महीने में, पॉइंटिंग 10 महीने में। ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट। हार्डवेयर की डेवलपमेंट तो चलना फिरना भागना दौड़ना, उसका कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल सोशल कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी है ही नहीं। तो हमें जो भी एफर्ट्स लेने हैं इंटेलेक्चुअल सोशल कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए लेने। अगर इसमें हम फिजिकल एक्सेस बढ़ाते जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट हो रहा है जो हमको इंटेलेक्चुअल सोशल कम्युनिकेशन में इनिशिएट करना। जब एफर्ट डेवलपमेंट बनने लगती है, साथ में बच्चा रिसिप्टिव होने लगता है, अपने सिग्नल लेने के लिए तैयार होने लगता है। आपके सिग्नल ले रहे हैं, सब आजू बाजू के सिग्नल ले रहे हैं, तो 10-12 महीने में समझ लगता है अरे अपना कौन है, पराया कौन है, स्ट्रेंजर कौन है, फैमिली कौन है। ये जब जानकारी होने लगती है तो बच्चे को खुद की भी जानकारी होने लगती है, हाँ मैं एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग हूँ, मैं फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, ये सब लोग मेरे लिए है। तो बच्चे की आगे की सोशल और सामाजिक डेवलपमेंट चालू होते हैं, जिसमें बच्चा पहले इमोशंस, फीलिंग्स और ईगो बनाने लगता है 12 से 14 महीने की उम्र से। 10 महीने हमने उंगली से पॉइंट किया, 12 महीने में समझा कि पापा कौन है, लेकिन 13 महीने में समझा ये मेरा पापा नहीं, ये इसका पापा है, ये मेरा पापा है। तो इमोशंस बनते हैं। तो जब इमोशंस बढ़ने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगते हैं, गुस्सा क्या समझता है, प्यार क्या समझता है, बच्चा के पप्पी देने लगता है, बच्चा के चाटने लगता है, बच्चा मम्मी 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 का हक करने लगता है, 12 से 14 महीने का है। हम यहीं पे अटक जाए, मतलब डेवलपमेंट यहीं पे अटक गई। ये डेवलपमेंट पेट के लेवल की, मतलब 12 से 14 महीने पेट बन गया है। उसके पहले बच्चा था रोबोट, जैसे हमने बताया। जब एक पेट बनता है तभी बच्चा बस अपनी नीड जानता है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, एक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन, पॉइंटिंग, हाथ लेके दिखाओ, इधर से दिखाओ, वो दिखाओ, बस पेट के लेवल का, बस फिजिकल लेवल में अटक जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए बच्चा सोशल बच्चा चाहिए, पेट के लेवल का नहीं चाहिए, हमें सोशल कम्युनिकेशन चाहिए। सोशल कम्युनिकेशन बेटा सामने बैठे बात करो, इधर देखो, आई टू आई कॉन्टेक्ट, हक किया, आई कॉन्टेक्ट गया, चाटने लगा, किस करने लगा, सोशल कम्युनिकेशन गया। सो सोशल कम्युनिकेशन में सोशल डिस्टेंस 14-16 महीने के बाद चालू होने लगती है। तो बच्चा सामने बैठ के बात करता है, मम्मी मुझे ये दे। तो उसके साथ में बच्चे की बनती है इमिटेशन। इमिटेशन के साथ बनती है सिक्वेंशियल इमिटेशन, इसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, तो एक्शन करके दिखाएगा। चलो मोर नाचते 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 गया, मोर ने अपने पंख फैलाए। जब सिक्वेंशियल इमिटेशन कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम उंगली से नहीं दिखा पाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से नहीं समझा पाते हैं, बोल के नहीं समझा पाएंगे। और ये तभी हम समझा पाते हैं जब हम ये सब समझने के लिए तैयार होते हैं। बच्चा समझने कब लगा, जब आपको नजर मिले 2 महीने का था तभी। तो पहला साल पूरा बच्चा आपको समझ ही रहा है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, क्या। तो बच्चे की समझने की फैक्ट्री चालू हो गई 2 महीने में, तो बच्चा एक्शन सीखता है 16 महीने में। उसी के साथ में जब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने लगती है, एक्शन लैंग्वेज स्ट्रांग होने लगती है, तो बच्चे के साथ में वर्ब जुड़ने लगते हैं। 20 साल का बच्चा 20 शब्द बोल सकता है, 20 महीने का बच्चा 40 शब्द बोल सकता है, 2 साल का बच्चा 2 वर्ड सेंटेंस बोल सकता है। और तभी हम बोलते हैं कि हाँ इसकी स्पीच आ गई। मतलब स्पीच आने के लिए 2 साल की उम्र लगती है, आई कॉन्टेक्ट आने के बाद, रिस्पॉन्स आने के बाद, मतलब सिग्नल लेने के लिए तैयार होने के बाद हमें 2 साल लगते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। तो सिग्नल कैसे लेने हैं? सिग्नल लेने हैं हमारी ज्ञानेंद्रिय से। सिग्नल लेने के लिए बच्चे का रिसेप्टिव होना जरूरी है। जैसे हम बोले एक डिश एंटेना है, इंसर्ट से सिग्नल ले रहा है, ऐसे टुक 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 टुक, जो भी सिग्नल आ रहे फटाफट पूरा डिस्प्ले आ रहे हैं, हाँ बोलेंगे बच्चा नॉर्मल है। जो भी टाटा स्काई का पैक डालेगा सबके सब चैनल दिखते हैं यहाँ पे। लेकिन आपका क्या हुआ यहाँ पे, डिश एंटेना का स्टैंड स्थिर नहीं है, बच्चा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो डिश भी घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा।
जब बॉडी फोकस नहीं है तो माइंड फोकस नहीं हो सकता। शरीर स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा, शरीर चंचल रहेगा तो मन चंचल रहेगा। शरीर स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा, तभी आंखें स्थिर होगी, तभी कान स्थिर होंगे सुनने के लिए। जो बच्चा सामने बैठ नहीं सकता है वो देख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, जो सुनता नहीं हो समझने के लिए तैयार नहीं होता, जो समझता नहीं हो बोलने के लिए तैयार नहीं होता। तो सीक्वेंस हमें इसी डेवलपमेंट में जानी है। अगर आपने पूछा कि मेरा बच्चा बोलता क्यों नहीं, शायद वो समझता नहीं है। हाँ, समझता तो नहीं है पूरा, समझता नहीं क्योंकि क्या है, सिग्नल पहुंचते नहीं दिमाग तक। तो स्पीच में बोल गया बहरा टेस्ट किया क्या, बच्चा बहरा तो नहीं है। तो बहरा नहीं है फिर भी समझता है, मतलब बात कान पे आती है दिमाग तक नहीं पहुंच रही है। जो बात कान पे आती है दिमाग तक नहीं पहुंच रही, मैं हेलो 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 10 बार बोल रहा हूँ तो उसको एक बार सुनाया जाता है, मतलब उसका फोन 2G में है, मेरा 5G में है, मतलब उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं नेटवर्क की कमी है, जो ब्रॉडबैंड नहीं है हमारे जैसे, इसलिए हमारी आवाज पहुंच नहीं रही उसके दिमाग में। तो नेटवर्क बनाने का तो हमें काम करना है। जितना ज्यादा नेटवर्क उतना ज्यादा बिजनेस। जिसका नेटवर्क कम उसका बिजनेस ठप। वोडाफोन डूबने वाला था, एयरटेल डूबने वाला था, नेटवर्क कम था, जियो ने खा लिया था सब। तो जब वो नेटवर्क बनाना चालू कर रहे हैं कहीं ना कहीं सर्वाइव हो रहे हैं, हाँ हम भी है, हम भी कनेक्ट हो रहे हैं आपके साथ में, हम भी कनेक्ट हो रहे हैं, सब दुनिया के साथ हम भी कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बना क्योंकि हमने नेटवर्क बनाना चालू किया। तो प्रॉब्लम यही होते हैं यहाँ पे कि जब जो कनेक्शन बनने हैं हर सेकंड में 1000 के हिसाब से, तो बनने वाली फैक्ट्री कहीं ना कहीं ठप हो जाती है, कभी पेट के अंदर कभी पेट के बाहर आने के बाद। जब ठप हो जाएगी उसके बाद की डेवलपमेंट जो बनेगी, पहले बने हुए कनेक्शन से ऊपर बनेगी। तो जिसकी थोड़ी लेट ठप हो गई वो बोलेगा 18 महीने तक ठीक था उसके बाद बात बंद हो गई, कोई बोलेगा 2 साल तक ठीक था उसके बाद बात बंद हो गई। बोलना ही पैदाइश कभी देखा ही नहीं बच्चे ने, आई कॉन्टेक्ट दिया ही नहीं। डिपेंड अपन कैसे, जितने भी हम कनेक्शन लेके पैदा हुए, जहां तक कनेक्शन बने, जहां से फैक्ट्री बंद हो गई वहां से आगे डेवलपमेंट नहीं हुई। तो पीछे जो कनेक्शन बने थे उसके हिसाब से आगे 1.5 साल तक गाड़ी चली। उसके बाद जब हमको सजीवों को सीखने के लिए दिमाग को तैयार करना था, ह्यूमन टू ह्यूमन डायनेमिक लाइव लर्निंग, हमारे कनेक्शन टूटने लगे क्योंकि ओवरलोड हो गए, जिसे मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं साइनेप्टिक प्रोनी। टूट गए तो जो रिग्रेशन हो गया। तो रोने की बात नहीं, यहाँ पे रिग्रेशन हो कुछ भी हो, जो भी हो एक बार हुआ है, बार बार ऐसा बॉम्ब नहीं होने वाला है, बार बार बद्री कदम में फ्लड नहीं आने वाले। हो गया सो हो गया, जो भी टूटा था सब अभी जुड़ गया 4 साल के बाद। तो उसी तरह से जो भी टूटा है उस पर ध्यान नहीं देना, क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, चिंता नहीं करने के, धूमकेतु आया कोई नक्षत्र बदल, क्या फर्क नहीं पड़ता। आज जो बच्चे की सिचुएशन यहाँ से आगे कैसे जाएगी। अगर आज आपका बच्चा बराबर नजर नहीं मिलाता है तो 2 साल की उम्र के जैसा मिलाता है क्या, 2 सेकंड मिलाते हैं तो बोले 2 साल के जैसा है, 10 सेकंड मिलते हो हाँ 10 महीने का बच्चा है, 2 सेकंड है तो 2 महीने का बच्चा है। लगातार देखता अरे हाँ ये तो 2 साल के बच्चा मिलाता है, मतलब नजर मिला रहा है, मतलब बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं कुत्ता बने रहता तो 2 सेकंड में हमें पता चलता है कि हमारी नजर में झांक करके हमें सुनने वाला है या समझने वाला है या फिर काटने वाला है। ये हमारे बहुत सारे ऑटिज्म के नए बच्चों के साथ नहीं बन पाता है कनेक्शन। तो कनेक्शन जब हम जुड़ेंगे बनाएंगे तभी बच्चा कम्युनिकेशन के लिए तैयार होता है। तो डिश इंटर हम स्टैंड फिक्स करेंगे तभी हम फोकस कर पाएंगे इनसाइड की तरफ। जब फोकस कर पाएंगे तभी हम बोले हाँ, अभी एलएनबी का पावर बदलेंगे तो पावर अच्छा आएगा। बाद में बोले अभी फुल पैक डालेंगे, चार्ज थेरेपिस्ट लगा देंगे तो अच्छा सिग्नल ले लेंगे। तो खाली थेरेपिस्ट लगा रहे और डिश इंटर में फोकस नहीं है तो हम पालते गड़े पे पानी डाल रहे हैं, गड़ा बढ़ेगा नहीं उल्टा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब तक हम रिसेप्टिव नहीं बनते, सिग्नल नहीं पहुंचते, तो रिसेप्टिव बनने के लिए लगता है लर्निंग पोस्चर। सामने बैठो, देखो, सुनो। जो सामने नहीं बैठता है वो देख नहीं पाता, जो देखता नहीं वो सुनता नहीं, जो समझता नहीं। आप में से कुछ लोग चलते चलते भी सुनते होंगे, आपका रिसेप्शन कम बनेगा, सब चीजें दिमाग में नहीं जाएगी। जो शांति से बैठ के सुन रहे हैं सब दिमाग में जा रहा है अभी। हाँ, ऐसे तो करना है, मेरा बच्चा देखेगा कब, सुनेगा कब, समझेगा कब, लेकिन उसके बाद बच्चा बैठेगा कब। तो बैठने के लिए हमें करना है, बैठने के काम देने हैं। बेटा बैठो 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 तो बैठना सिखाएंगे, भागो दौड़ो कूदो तो कैसे बैठना सिखाएंगे। अगर हमारा बच्चे को शांति से सामने बैठना है हमारे सिग्नल लेने के लिए, तो स्कूल वाले बोले हम लेंगे, बैठता है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो बैठने के लिए बिठाना है, तो उसके बाद उसके साथ में अगर हम 10% भी उसको भागने वाले काम देने लगते हैं तो क्या होगा कि बच्चे को जो एंजॉयमेंट लगती है आपको भागने में वही लगेगा कि यही स्वर्ग है,
क्योंकि यहाँ से तो सीखने से दूर जाने को मिलता है, एस्केप मिल जाता है, डिसिप्लिन से एस्केप मिल जाता है। अब पुराने स्टाइल में देखोगे गुरुकुल में बच्चे बैठे रहते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्यों? स्थिर बैठते हैं, मन से स्थिर लगाते हैं, तभी आंखें बंद रहती है, तो भी मेडिटेशन से सीखना चालू हो जाता है। क्योंकि पोस्चर ऑफ लर्निंग है, पोस्चर ऑफ अटेंशन, उसके बगैर कोई लर्निंग नहीं बनती है। तो वहां पे जो भी स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे। लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी जो टाइम बचता है उसमें हम खुदाखुदी भागम भाग करेंगे। यहाँ पे होता क्या है कि हम ज्यादातर नहीं, बच्चे को अच्छा लगता है कूदने दो कूदने दो कूदने दो कूदने दो, 10 साल तक बच्चा कूद ही रहा है, हमको लग रहा है कि अरे हाँ ये एंजॉय इज माई स्पेशल चाइल्ड। बट हमने उसको क्या फिक्स किया है कि हाँ यही कूदो बेटा, यही लाइफ है तुम्हारी, हम बचपन से यही करते हैं, सब एक्सपर्ट मुझे यही बताते आए। हमें बैठना सिखाना है तो उछलना नहीं है, बैठना ही सिखाएंगे। योगी बनाना है तो बंदर नहीं बनाएंगे। तो जितने जल्दी हमें करेंगे उतने जल्दी हमें सिटिंग टॉलरेंस होना चाहिए, सेल मिलेगा। सिटिंग एंगेजमेंट के लिए सिटिंग होना जरूरी नहीं है, हमेशा के लिए सिटिंग होना चाहिए ना। कभी कभी बोलते हैं कि हाँ बच्चा बहुत सुस्त है। सुस्त है मतलब सोया नहीं है, जगह है। सुस्त मतलब खाली कान काम कर रहे हैं, सुनाते जाइए सीखते जाइए। एटलीस्ट सुनने की कैपेसिटी होती है। जब तक बॉडी लूज है, स्टेबल है, एक्टिव ज्यादा नहीं है, तो हम सुनने के लिए तैयार होते, तभी सुनाई अच्छा देता है। जो उछल कूद करता है उसको सुनना तो दूर, नजर भी नहीं मिलती बराबर से। तो जब हमें रिसेप्शन के लिए तैयार करना है तो बच्चे को बॉडी को स्टेबल करना है सीखने के लिए। हाँ आजकल बच्चा मेरा बैठता है, थोड़ा देर तक बैठा, तो बैठ के क्या करता है, हाँ अभी बैठा है इसलिए तो मेरी तरफ नोटिस कर रहा है, मुझे नोटिस कर रहा है, मुझे देखता है, मुझे देखता है, मुझे सुनता है। देखता है इसलिए लगा कि मुझे सुनता है, इसलिए लगा कि मुझे समझता है। अभी मैंने बोला पानी का गिलास लाके तो तुरंत लाके दो, क्योंकि वो रिसेप्शन आ गई तो रिस्पॉन्ड करने लगा। जो सिग्नल नहीं लेगा वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जो रिस्पॉन्ड करेगा वही रेसिप्रोकेट करेगा या कमांड फॉलो करेगा, तब हम बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग आने लगे। और जब तक हम रिस्पॉन्स, रिसेप्शन के बाद रिस्पॉन्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हैं, तब तक हम फैमिली मेंबर बनने के लायक नहीं होते। फैमिली मेंबर बनने के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उसके लिए फैमिली रिस्पॉन्स देना समझना चाहिए, उसके लिए फैमिली से रिस्पॉन्स लेना भी समझना चाहिए, उसके लिए हमको रिसेप्टिव होना भी समझना चाहिए। तो अगर किसी को भी कुछ भी सिखाना है तो पहले सीखने के लिए तैयार करना। आपको मड से भी क्ले बनाना होता है तो पानी डाल के मड को एक लेवल तक नरम बनाना होता है, तभी हम उसका आइडॉल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको नरम नहीं बनाते तो आइडॉल नहीं बनता। इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट। ब्रेन को कुछ सिखाना है तो ब्रेन को सीखने के लायक बनाना है। खाली सीखो सीखो सीखो, ये देखो ये करो वो करके सीखने वाले नहीं हम। उसी तरह से बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना है तो सीखने के लिए सबसे पहली बात है सीखने का पोस्चर। बैठो, देखो, सुनो, समझो। सिटिंग, actual contact, listening to commands, following them, obeying them, and then you copy the commands. ह्यूमन टू ह्यूमन हमें कम्युनिकेशन सिखाना है, तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन ही कम्युनिकेशन सिखाना है। संवाद एक ऐसी चीज है जो हम निर्जीव वस्तुओं के साथ सीख ही नहीं सकते। तो अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ही संवाद सिखाना है तो हमें ह्यूमन टू ह्यूमन ही कनेक्शन चाहिए हमेशा। वस्तुओं के साथ कनेक्शन हुआ तो ऑब्सेशन बन जाता है, गाड़ी घूमने लगते हैं बार बार से बार बार से, क्योंकि हम सजीवों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए निर्जीव वस्तुओं को ही कंट्रोल दिखा रहे हैं। हमारी गाड़ी घुमा घुमा कर बार बार आगे के साथ खेल कर या इधर उधर पेपर फेंक कर। ये ऑब्जेक्ट ऑब्सेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सजीव को समझने के लिए तैयार नहीं बनते। क्योंकि जब हमको सजीव समझ में नहीं आने लगे, हमने सजीव की तरफ पीठ फैला दी। इसलिए कितने सारे बच्चे हैं मम्मी डैडी के साथ पीठ फैले रहते, दीवार की तरफ देख के, किलोमीटर देख के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। जब हमें निर्जीवों में ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है तो समझ लो हम सजीवों से दूर जा रहे हैं, तो संवाद से दूर जा रहे हैं, सामाजिकता से दूर जा रहे हैं। इसीलिए मोबाइल बंद, क्योंकि निर्जीव वस्तु है। इसलिए खिलौने बंद, निर्जीव वस्तु है। एक खिलौना कोई भी आपने दिया, क्या सीखोगे आप उसको? 2 महीने से 3 महीने से सेम पड़ा है, रोज बच्चा वो लेके ऐसे घुमा रहा है, क्या सिखा रहा है हम उसको? उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा खिलौना हटाएंगे, बेटा मैं आपकी मम्मी हूँ, मुझे देखो, मुझसे सुनो, मुझसे समझो। तो हम कुछ ना कुछ सजीवों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हमें बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो फेस टू फेस, ह्यूमन टू ह्यूमन, आई टू आई, बॉडी लैंग्वेज टू बॉडी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करनी। ये सबके लिए बच्चे का स्थिर होना जरूरी है। हर एक पॉइंट के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं।
लेकिन स्थिर होने के लिए हम नाच नाच के स्थिर नहीं करा सकते। थका थका कर सुलाने से आपका भी टाइम वेस्ट, बच्चे का भी टाइम वेस्ट। एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि शरीर से वेस्ट होने के बजाय दिमाग के काम के लिए आ जाए। एनर्जी शरीर से हो गए तो बस बच्चा और खाते खाना मांगते रहेगा और नाचते रहेगा, खाना मांगते रहेगा, नाचते रहेगा, दिमाग का काम तो ठंडा ही हो गया। तो सर, सीखने के लिए तैयार करना है, समझने के लिए तैयार करना है, रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार करना है, सजीवों के साथ जुड़ने के लिए तैयार करना है, तो हमें निर्जीवों के साथ जुड़ना बंद करना पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे अभी आपने जो बताया, ये तो ठीक है कि लाइक अगर हमें उन्हें सिखाना है, पहले उसको रेडी करना है, लाइक कि तुम्हें ये काम करना है, बट वो काम करने से पहले उसको रेडी करना है कि लेट से बच्चे को हमने कहना है तुम्हें दौड़ना है, तो पहले उसके मसल्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि खड़ा तो हो सके, चल तो सके, तब वो दौड़ेगा। हम्म। क्या होता है प्रॉब्लम, मैं समझाता हूँ। हम्म 99% एक्सपर्ट्स इसको एक्शन डिसेबिलिटी मान के चलते हैं। हम्म ऑटिज्म सेंसिंग डिसेबिलिटी, इसलिए तो सेंस नहीं है, इसलिए तो सेंसरी इश्यूज है। तो अगर हम हम्म सिरेबल पाल्सी समझ के मैनेज करेंगे तो ये सब बातें आती है। हाँ, खड़ा होना चाहिए तो चलेगा, तो समझेगा। हम्म यहाँ पे शरीर का स्थिर होना जरूरी है ताकि खाली नजर मिले और कान सुने। दुनिया सेंस नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रॉब्लम। सिरेबल पाल्सी में बच्चा दुनिया सेंस कर पाता है, लेकिन हाथ पांव इतने टाइट है कि कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ताकत नहीं है। हम्म तो अगर हम एक्शन, फुल न्यूरोलॉजी इसी बेसिस पे होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और एक्शन। हम्म जो इनपुट वाली डिसेबिलिटी है, प्रोसेसिंग वाली डिसेबिलिटी और एक्शन वाली डिसेबिलिटी, जो सेंस नहीं कर पाते हैं वो ऑटिज्म में आते हैं। हम्म सेंस करके प्रोसेस नहीं कर पाते हैं वो सेंसिटिव प्रोसेसिंग बन जाते हैं। जो सेंस करके प्रोसेस भी कर पाते हैं लेकिन एक्शन प्लान नहीं कर पाते उसको अप्रक्सिया बोलते हैं। जो एक्शन प्लान भी करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उसको मोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। नाम देने के से हम्म हमें इसमें जितना ही नहीं, हमें इतना पक्का है कि मेरा बच्चा भागता कूदता है, मतलब उसका मोटा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हमें मोटर एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, पहले से ये बंदर है, इसे हमें ह्यूमन बनाना है। हम्म जो बच्चा भाग सकता है उसको फिर से फिजिकल स्किल बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम वेस्ट करें टाइम जो हमें इंटेलेक्चुअल स्किल में बढ़ाना था। अगर समझो बच्चा दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, उसका मैथ्स कमजोर है, हम इंग्लिश का ट्यूशन लगा के मैथ्स नहीं ठीक कर सकते। तो लेकिन यहाँ मैथ्स पे एक चैलेंज क्या है जो पेरेंट्स के एंड पे है, मतलब आपने फेस वाइज बताया कि बिट बाय बिट अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, जो भी कंडीशन है उसको ठीक करना है, तो आपको बिट बाय बिट चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अभी हम यहाँ करना पे। पड़ेगा, सीक्वेंस हमें फास्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब चैलेंज यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे हमने जो जिस तरीके से हम लोगों ने अपने देखा है, हमें पाला पोसा गया है, तो उसी बैकग्राउंड से हम लोग चीजों को देखते हैं कि अच्छा इतने साल का बिल्कुल। बच्चा हो गया तो इसलिए उसको ऐसे मैंने करना चाहिए। आपकी पहली लाइन यही बताई कि मैं आपको अलग पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। जब हमें रास्ता नहीं मिलता है हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। हाँ, लेकिन अब उस रास्ता कई बार लंबा भी हो जाता है, टाइम वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि बिल्कुल। वी समटाइम ट्राई आवर ओन विजडम, समटाइम कोई दूसरा आके गाइड कर बेटर जाता होगा है। कि हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी फिलहाल, ये आधा हम ब्रेक देंगे यहाँ पे। राइट। कि हमने क्या सीखा मैं बताने की कोशिश करा, हमने एक नॉर्मल डेवलपमेंट सीखने की कोशिश की। हम्म बच्चा सिग्नल कैसे लेता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चे को लर्निंग पोस्चर की जरूरत है। लर्निंग पोस्चर के लिए बैठो देखो सुनो समझना चाहिए। उसके लिए बैठना है तो सिखाने वाले काम बंद, सुनना है तो सुनने वाले काम ज्यादा देने पड़ेंगे, देखने वाले काम बंद। उसी तरह से बोलना है तो बोलने सुनने के लिए काम देने चाहिए, और सजियों के साथ रिश्ता बनाना है तो निर्जीव वस्तु के बदले सजियों के साथ कनेक्शन चालू करना। ये सब हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, इसके साथ आपके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल हम लोग अभी चालू करेंगे, ऑलरेडी 30 मिनट्स ओवर। राइट। मैं ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज सेंसरी इंटीग्रेशन, हाउ टू आप मेक सबके क्वेश्चन भी बोल सकते हो, पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन निकाल दिए बाद में सबके ले लेना। मेरे दिमाग में सर ये था कि जैसे चैलेंज क्या होता है कि जो पेरेंटिंग होती है ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट गेम होता है कि बच्चा हुआ, अब उसको हमने पालना है, तो और उसी बीच में अगर आपके सामने ये चैलेंज आ जाता है कि बच्चा आपका ऑटिज्म में है, तो वहां पर आप नॉर्मल तरीके से जैसे बच्चे से डील करते हो वैसा अब आप नहीं करोगे, आपको कुछ डिफरेंट वेज सीखने पड़ेंगे। जैसे आपने कहा उसको तैयार करना है, हमें आई कांटेक्ट करना है। नॉर्मली हम देखते हैं जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करते अपने बच्चे के साथ में, वो छोड़ दिया, वो अपने आप ही पल के बड़ा हो जाता है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये होता है क्या करना है, बच्चा बोल नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं है, तो पहले तो केवल समझने में ही 3-4 साल निकल जाते हैं कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। क्योंकि बहुत से लोग, हमें बहुत से क्या, मेरे ख्याल से सभी लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं होगा कि ऑटिज्म क्या है। और जब हम इस सिचुएशन में आए तो फिर हमने पढ़ना शुरू किया, इंटरनेट पे जाके देखना शुरू किया, और आसपास जो भी थेरेपिस्ट हैं,
जिनको कम या ज्यादा जो भी पता है, बट कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाते कि दिस इज द राइट वे और दैट इज द बिल्कुल, अगर यहाँ पे डॉक्टर्स भी कंक्लूड नहीं पाते तो पेरेंट क्या कंक्लूड करेंगे? एग्जैक्टली। क्योंकि डॉक्टर्स भी अपने अपने डिफर हो जाते हैं, स्कोर्स अलग दिखने लगते हैं, कोई बोलता है माइल्ड है, कोई बोलता है मॉडरेट है, कोई शब्दों की भाषा में मत घुसिए, लेबल देने के पीछे मत भागिए। प्रॉब्लम क्या है देखिए, सोल्यूशन क्या है फाइंड आउट कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, बिहेव नहीं कर रहा है, बस इसी को टैकल करना। राइट। नाम देते जाएंगे तो आप घर लेके बैठोगे, कुत्ता लेके बैठोगे, पानी में डुबाते बैठोगे, सैंड में लगाते बैठोगे, ऊपर से शिरोधारा डालते बैठोगे, ये सब एंडलेस मैजिक गेम है। एवरीबॉडी वांट्स टू मेक अ बिजनेस हियर। राइट। इसमें गिरना नहीं है हमें। कोई भी चीज अगर बच्चे को आप कर रहे हो लगातार और आपको लगता है कि साला एक कम्युनिकेशन सोशल में क्या फायदा है इसका, नहीं है तो छोड़ देना। राइट। Anything what you do should be towards the goal. If you do not give the direction to the goal, you are not reaching the goal. So हमारे गोल डायरेक्टेड कॉग्निटिव अप्रोच में हमारा मेन मुद्दा यही होता है, चेंज द गोल्स एंड सी द चेंज। अगर हम गोल से छूट जाते हैं तो कहीं और रास्ते पे घुसे तो हम उसी रास्ते में परफेक्ट करते जाते हैं, हमारा मेन गोल भूल ही जाता राइट। है। ओके। एक बच्चे को डिसिप्लिन होने के लिए स्कूल में डाला है, वो खाली हैंडराइटिंग के एग्जाम देते बैठा है, लेवल नहीं है ना उसके आगे कहीं पे। राइट। कितने 10 एग्जाम देके हैंडराइटिंग के, लेकिन हैंडराइटिंग में एक्सपर्ट बनोगे, लेकिन 10वीं पास नहीं होगा तो फायदा नहीं उसका। राइट। राइट। Doctor, I think बोलना सिखाना, mostly सुनना सिखा रहे हैं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दीपक, दीपक जी, मैंने सबको वो कर दिया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सो वन बाय वन वी विल गो, जो भी क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में है। दीपक। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। माय क्वेश्चन इज दैट कि जैसे आपने मुझे बताया कि सेंसरी इंटीग्रेशन, बच्चा सेंसरी स्टेबल होना चाहिए, ओनली देन ही इज रिसेप्टिव। तो ये स्टेज कैसे अचीव करनी है? एक्चुअली मुझे उसको सेंसरी स्टेबल बनाना है, दैट इज देयर, दैट आई नो, बट उससे पहले करना क्या है कि मैं उसको सेंसरी स्टेबल बनाऊं? वो सेंसरी इंटीग्रेशन क्या चीज है, फिर ओके, कैसे अचीव की जाए? अभी हम साइंटिफिक भाषा में नहीं पढ़ेंगे। ठीक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ऑटिज्म में कुछ बेसिक कोर कंसेप्ट होते हैं जो हमने बताया कि बच्चा सुनता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं, इसलिए नाता नहीं बना पाता है, इसलिए कम्युनिकेशन होता है, बेसिक कंसेप्ट है। जब हम ये नहीं कर पाते हैं तो बाकी सब सेंसरी इशू निकलने लगते हैं, तो इनको बोलते हैं रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स। तो सेंसरी इशू प्राइम नहीं है यहाँ पे, सेंसरी इशू सेकेंडरी है। बेसिक सेंसरी इशू क्या है, बच्चा दुनिया को सेंस नहीं कर पा रहा। अगर बच्चा दुनिया को सेंस कर पाया और समझ कर पाया तो वो खुद ही बोलेगा मैं क्यों काटू, क्योंकि हम दुनिया को सेंस नहीं कर पा रहे। अगर हम इसके बजाय अगर हम कंसेप्ट बना देंगे कि सेंसरी इशू भी प्राइम है, तो हम कोर सिम्टम्स को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप जो सेंसरी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, जो यूनिवर्सली सेंसरी इंटीग्रेशन बोला जाता है, बाहर का सेंसरी इंटीग्रेशन जो आपको थेरेपिस्ट सिखाते हैं, टच है, स्मेल है, पेल, जो भी हम कर रहे हैं बाहर, ये दे दिया, वो लगा दिया, वो लगा। लेकिन हमारे बच्चे का मेन प्रॉब्लम क्या है, कान से जो आ रहा है, नाक से जो आ रहा है, आंख से जो आ रहा है, दिमाग में एक नहीं बना है। तो अंदर से सेंसरी इंटीग्रेशन की जरूरत है, दिमाग के अंदर से। लेकिन प्रॉब्लम दिमाग के अंदर से, बाहर से नहीं। खाली सेंसेस देखकर ट्रेन करा सकते हैं कि हाँ ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट है, तुमको इसका अलग अलग ट्यूशन है। लेकिन बच्चे के दिमाग में सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब एक ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अंदर एक ही होता है, सबका नाम साइंस होता है, तो इंटीग्रेशन होना है। तो एक आपको स्टोरी पता होगी, एक 4 अंधे एक हाथी को लगाने हाथ हाथ देखने गए कैसा है। एक अंधे ने सूंड को लगाया, बोला हाथी तो पाइप जैसा होता है, दूसरा बोला दीवार के जैसा, तीसरा बोला रोप के जैसा होता है, चौथा बोला पता नहीं क्या होता है। लेकिन जब तक साथ इकट्ठे बैठ के इंटीग्रेट नहीं करते, अरे हाँ ये तो हाथी है, एक साथ बैठेंगे तभी पता चलेगा ये एनिमल कैसा है। अगर हम अलग अलग तोड़ तोड़ के ट्रीट करेंगे तो स्पीच को लगेगा खाली मेरा ही एरिया है, कॉकरोच को लगेगा मेरा एरिया है, बिहेवियर को लगेगा मेरा ही एरिया, ऐसा बात नहीं है। आप हम सबको थेरेपिस्ट का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इकट्ठा, ताकि वो सब इकट्ठे काम करें कि हाँ बच्चे को हमें सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए तैयार करना है, भले हम कुछ भी नाम यूज करें उसका। अलग अलग लोगों ने अपने अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज बना दिए हैं, उसका मतलब बच्चा ठीक होगा ऐसा नहीं, उसका मतलब उसको डिग्री मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन बच्चे में फर्क आने के लिए उसको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या कमी है, किस वजह से। कोई बच्चा बहरा है और हम 1000 बार स्पीच थेरेपी करें तो ठीक नहीं होने वाला है, पहले बहरेपन का इलाज करना पड़ेगा। नहीं नहीं हम तो बुलाने वाले डॉक्टर स्पीच नहीं, लेकिन पहले डेफ है तो पहले डेफनेस का इलाज करना पड़ेगा। उसी तरह से जिसको समझ नहीं है, पहले समझ पैदा करनी पड़ेगी, ताकि बाकी सब चीजों की समझ आने लगेगी। तो बेसिक सेंस जो सेंसरी इश्यूज में सुधारना है ऑटिज्म में, कॉमन सेंस,
sense of understanding human beings, sense of being a human being, sense of relating to human beings, sense of connecting to human beings, sense of communicating to human beings. तो बाकी सेंसिटाइजेशन में तभी मजा आएगा. तो आपने जो बोला था कि बच्चे को सेंस स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा. लेकिन कौन से सेंस को स्टेबलाइज करना है? प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी कॉमन सेंस को स्टेबलाइज करना. प्रायोरिटी टच को स्टेबलाइज नहीं करना है या लिकिंग को स्टेबलाइज नहीं करना है. उसके पीछे पड़ 2 महीने हो गए, हम वही कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको अच्छा लगता है चाटना, हम अलग अलग प्लास्टिक चाटने के बात नहीं बनने वाला. वहां हमें टोटली ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस जो ह्यूमन सेंस है उसी को कनेक्ट करने के लिए कोशिश करना है. जब तक हम पूरी सिम्टम्स में नहीं लाते हैं, बाकी बिहेवियर्स खाली हम मास्क कर रहे हो. Okay. 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 Sorry, Deepak. नहीं ठीक है. वही डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है ना, तो अगर सपोज करो किसी बच्चे के इश्यूज हैं कि वो शोर से बहुत परेशान होता है, जो मेरे लिए ऑडिबल है लेकिन उसके लिए ऑडिबल नहीं है सपोज. अब मैं उसको लर्निंग कराना चाहता हूँ सपोज, लेकिन वही नॉइस है, बैकग्राउंड में नॉइस है. अब वो एक चैलेंज है. अभी देखो, उसको हम कैसे इश्यू है जो बच्चे को एक जगह पे शांत बैठने नहीं देता है. हाँ राइट. हम इसे बोलेंगे अनड्यू फिजिकल एक्टिविटी, अनवांटेड फिजिकल एक्टिविटी जो अनएक्सपेक्टेड है उस सिचुएशन में. तो किसी भी कारण से भले हम बोल रहे कि हाँ वो सेंस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सेंस को सीख कर रहा है, सेंस को बिहेव कर रहा है, जब तक हम अनड्यू फिजिकल एक्टिविटी को सेटल नहीं कर सकते, बॉडी की स्टेबिलिटी नहीं आती है सेंस करने के लिए. ओके, तो जो अनड्यू फिजिकल एक्टिविटी है या हाइपर एक्टिविटी हो सकती है जो एडीएचडी वाली होती है, या फिर सेंसरी इश्यू भी हो सकती है. बच्चा सेंस को सुनने लगा है, सूंघने लगा है, समझने लगा है, हर चीज को सूंघने लगा है, हर चीज को सुनने लगा है, छोटी छोटी आवाज को भी बढ़ने लगा है. मतलब उसकी जो सेंस करने की कैपेसिटी है थोड़ी बहुत डेवलप हुई, लेकिन एक लेवल तक आ गई. लेकिन हम इसके गोल में जाएंगे तो मेन गोल से दूर चले जाएंगे. मेन गोल क्या है? देखो, सुनो, समझो, समझने के लिए लायक बनो, तभी हम बोलेंगे हाँ अगली. पहले तो मैं ऐसे हाथ तक था, अगली मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी समझता है तो मिक्सर है, रोज आता है, रोज बचता है, मैं क्यों रखा था पहले हाथ. तो समझ आएगी कि हाँ ये मिक्सर है, रोज का है, तो समझ लाने के लिए बच्चे को यूज कराना जरूरी है. बेटा देखो ये मिक्सर है, लेकिन उसको बच्चे का सुनना जरूरी है, उसके लिए देखना जरूरी है, उसके साथ में होना जरूरी है, उसके बाद बच्चा रिसेप्टिव होना जरूरी है. तो सिग्नल लेने के लिए तैयार होना है फेस टू फेस, ह्यूमन टू ह्यूमन, तभी हम बाकी चीजों को सुधार सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि आपने पढ़ा भी बहुत है, कोर सिम्टम के बाद ही बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं. तो बिहेवियर सिम्टम सेकेंडरी होते हैं. जब तक हम कोर ने टैकल करते हैं, बिहेवियर को टैकल नहीं कर पाते. ओके ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू. Okay. Next is Vishal. Vishal, are you there? हाय हाय थैंक्स. गुड आफ्टरनून सर. मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि सेटिंग टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो रिसेप्टिव उसका बढ़ता है, वो हमारे ऊपर ध्यान देता है, और तभी जब हमारे पर ध्यान देता है तब हमसे सीखता है. बट सेटिंग टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कई बार हम उसको किसी बुक में एंगेज कर देते हैं, तो भी वो हम पे तो ध्यान नहीं दे रहा होता. वो बैठ जरूर रहता है बट कोई हमारे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता. इंटरेक्शन उसका किसी बुक से, टॉय से, अपनी पेंसिल से ही चल रहा होता है. तो क्या इज हो दैट टू इंक्रीज सेटिंग टॉलरेंस, या इज इट एक्चुअली हेल्पफुल इफ दिस इज द वे टू इंक्रीज सेटिंग टॉलरेंस? जैसे मैंने पहले ही भी बोला है, निर्जीव वस्तु के साथ रहोगे तो सजीवों से दूर जाओगे. कोई भी सिखाने के लिए आप एक्टिविटी दोगे तो एक्टिविटी में ही फंसे रहोगे, इंटर एक्टिविटी नहीं बनेगी. सजीवों को सजीवों के साथ कनेक्ट करना है तो इंटर एक्टिविटी चाहिए. साथ में देखो, बेटा देखो, ये हूँ मैं हूँ, मेरा येलो है, आपका शर्ट पीला है, जो भी है, इंटरएक्टिविटी होगी तभी कनेक्शन बनेगी. हम वस्तु के साथ इंटरएक्टिविटी नहीं पैदा कर सकते. अभी सिटिंग के लिए वस्तु के साथ बैठना मतलब आप खाली वो फिजिकल उस वस्तु के ऑब्सेशन में आप उसको बंद रख रहे हो. आप लोग कैसे बैठे हो मेरे साथ? सब लोग मेरी आंख में देख के बैठ रहे हो. क्यों बैठे हो आप लोग? मैंने आपको कोई वस्तु देखी नहीं रखेगी एंगेज करने के लिए. आप लोग बैठे हो क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए तैयार हो, आप रिसेप्टिव हो. तो जब भी कोई बच्चा बैठ नहीं रहा है फिजिकली, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन तो सब पेरेंट्स को लगता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा फिजिकल रिस्ट्रेंट डालते हैं तो बिगड़ जाता है. और उसके लिए एक आध बार रिवॉर्ड चालू है, लेकिन हमेशा हम कोई टॉय वगैरह देके बैठने लगते हैं तो फिर उसी के ऑब्सेशन में चले जाता. कभी कभी ऐसा भी होगा तो आप बच्चे को टॉय के साथ छोड़ दोगे, बाकी सिखाना ही बंद हो जाएगा.
भले ही आप 2 मिनट के लिए आपने बिठाने के लिए बैठा, चलो मैं आपको चॉकलेट देता हूँ, आपको मैं टॉय देता हूँ, इधर बैठो, हाँ बैठो, इधर है टॉय आपको मिलने वाले हैं, चलो आप मेरी तरफ देखो, चलो मैं अभी देखता हूँ, हाँ टॉय है यहाँ पे, आप उठो मत, चलो बैठो, हाँ बैठो, हाँ क्रॉस लेग करके बैठो, डब्ल्यू में मत बैठो, क्रॉस लेग बैठो, चलो पाँव के ऊपर एक छोटा सा टेबल डाल दे, आपकी टॉय इधर ही है, आपको मिलने वाली, टेबल डाल दिया हमने, चलो अभी टेबल डालते हुए उठना मुश्किल हो जाता है, देखो देखो आपके पास, आपको देख रहा हूँ। इसी तरह से हम सिटिंग टॉलरेंस सस्टेन करा सकते हैं। जब तक हम सिटिंग टॉलरेंस सस्टेन नहीं करते तब तक लर्निंग नहीं बनती। तो सिटिंग के लिए तैयार करना, सिटिंग के लिए रिसेप्टिव करना, सिटिंग को सस्टेन करना, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनअटेंशन, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी एंड हाउ मच डिस्कम्फर्टिंग इट इज, एंड कितने महीनों से चालू है, और 2 अलग अलग जगहों पे होती है, तो इसको हम हाइपर एक्टिविटी की ट्रीटमेंट चालू करते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी इश्यू है जो 3 महीने से ऊपर रहता है, वो अपने आप ठीक नहीं होने वाला। जब दिमाग के अंदर से प्रॉब्लम है, बाहर से साबुन लगा के ठीक नहीं होने वाला। हमें अंदर से ही काम करना पड़ेगा ताकि बच्चा स्टेबल रहे, ताकि हम कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए तैयार कर सकें। तो जिसको प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिविटी, उनको हाइपर एक्टिविटी मेडिसिन लगते हैं। जिनको वायलेंस की प्रॉब्लम है, उनको वायलेंस के मेडिसिन लगते हैं। अभी हाइपर एक्टिविटी जब होती है, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं, मुझे दवा नहीं दे, मुझे नहीं दवा, ठीक है, दवा के नाम से डरो, जिंदगी खराब कर रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइपर एक्टिविटी हम ठीक नहीं करते, तो क्या होता है, हम फिजिकली दबाने की कोशिश, चल बैठा बस, चल बस, चल बस, चल बस, इधर नहीं जाना, इधर बस, क्या होता है, हम नोच रहे हैं, दबा रहे हैं, तो बच्चा वही करना सीख जाता है। तो बच्चे में एजिटेशन, एग्रेशन बनने लगता है। कोई भी अनड्यू अनवांटेड फिजिकल एक्टिविटी अगर हम फिजिकल मीन से टैकल करते हैं, तो उसे एग्रेशन, वायलेंस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। बच्चा 3 साल का है तब ठीक है, 10 साल का होगा तो मारा मारी पे उतर जाते हो। तो ये सबको हमें यहाँ तक नहीं पहनाना है, क्योंकि जब कोई भी अनड्यू फिजिकल एग्रेशन आती है, तो उसके बाद एंग्जाइटी, फियर, बिहेवियरल इश्यूज, हिटिंग, थ्रोइंग, बाइटिंग, हर्टिंग पीपल, हर्टिंग थिंग्स, थ्रेटनिंग थिंग्स, ये फेंकू क्या, करूँ क्या, ऐसी सब चीजें भी चालू हो जाती है। और उसके बाद आती है स्टीलिंग, लाइंग और अदर कंडक्ट डिसऑर्डर्स। क्योंकि यहाँ पे हमने फिजिकली रिस्ट्रेन करने की कोशिश है। हमें ध्यान रखना है कि एक भी टेररिस्ट बच्चा तो पूरे देश के वाट लगा सकता है। तो कोई भी टेररिस्ट बिहेवियर, कोई भी हार्मिंग बिहेवियर, हर्टिंग बिहेवियर को हमें पनपने नहीं देना। इनिशियली लाड़ प्यार से, 1-2 महीना लाड़ प्यार से, डिसिप्लिन से, नहीं बन रहा है दवा से। Right. Okay, so next is Shikha Goyal. I'm not sure whether she is there. Is there is fine. Fine. Yeah. So Kajri, are you there? Kajri Yes, says, yeah. yes, yes. Good afternoon, doctor. Actually, I want to discuss about my son. He's 11-year-old. His receptive ability is very, very good. Like I'm giving an example. Like me and my husband was talking. My husband is saying the weather is become too hot. It's sweating. The fan is on. He went there and increases the fan's regulator. He is very good in studies, but whenever he can, if I ask him any question, he can type the answer. But whenever someone asks him something, say something, his anxiety has become very much. He started become sweating. एक लाइन में And आंसर है मेरे पास। yes, now कितने साल what का बच्चा है आपका? could motivate him? आपका कितने साल Please, का बच्चा है? he is 11. ओके। 90% ऑफ द टाइम्स आपने बच्चों को विजुअल लर्नर बनाया है, इसलिए विजुअल Yes. लर्निंग में दिक्कतें नहीं है, विजुअल फॉलोइंग में, विजुअल कमांड में दिक्कतें नहीं है। और जितना आपने बच्चे को विजुअल लर्नर बनाने की कोशिश की है, उतना बच्चा ऑडिटरी लर्निंग से दूर चला गया है। तो कान से सीखने वाली चीजों का टाइम हमने आंख से सीखने वाली चीजों पे दे दिया, तो बच्चा कान से सीखने वाली चीजों में एक्सपर्ट नहीं बनता है। तो जो कान से नहीं सीख पाएगा, उसकी भाषा स्ट्रांग नहीं बनेगी सुनने वाली, उसकी भाषा स्ट्रांग नहीं बनेगी समझने वाली, उसकी भाषा स्ट्रांग नहीं बनेगी बोलने वाली। क्योंकि जब हम आंखों से सीखते हैं, खाली दिखने वाले एक्शंस और दिखने वाले वर्ड सीखते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ड, एक्शन वर्ड की तरह। आंखों से सीख के नहीं पता चलता कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया है, नहीं पता चलता आंखों से। कानों से सुनकर एडजेक्टिव्स आते हैं, सुपरलेटिव्स आते हैं, एक्सक्लेमेटरी आते हैं, सब तरह की भाषा की प्रगल्भता जो आते हैं कानों से आते हैं। तो वक्त में गया है, हमें बच्चे को कानों से सीखने के लिए तैयार करना है, ताकि उसको सुनने वाले लैंग्वेज की दिक्कत ना हो। तो लैंग्वेज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट प्रैग्मेटिक स्टाइल बनेगी, बाद में सिंटैक्स बनेगा, उसके बाद में प्रगल्भता जो बढ़ेगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्वालिटी सुनने वाली बढ़ानी पड़ेगी।
तो सुनने वाली लैंग्वेज में सबसे पहले खाली आपने जो सिखाना चालू करते हैं, बहुत सारे लोग, आपने खाया क्या, आपने किया क्या, बेटा ये क्या है, बेटा वो क्या है, प्रश्न पूछ के हम सिखाते हैं। जब हम प्रश्न पूछ के सिखाते हैं तो बच्चे के नॉलेज के पहले हम उसके एग्जाम लेने की कोशिश करें। हमें कभी भी प्रश्न पूछ के नहीं सिखाना है। ट्रू लर्निंग तभी होती है जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। Yes. हम हमेशा पूछ, बेटा ये क्या है, वो क्या है, क्या होगा, उसको इरिटेट होगा, मेरे ईगो को क्यों हर्ट करे, मुझे पता है, मालूम है, फिर भी क्यों, मालूम नहीं फिर भी क्यों पूछ रहे, दोनों तरह से हर्ट हो जाएगा। तो हमें खाली नरेशंस में सिखाना है, बेटा ऐसा है, ऐसा, इसका ऐसा होता है, ऐसा होता है, बस ये ऐसा है। खाली ये एप्पल है नहीं बोले, अरे एप्पल का तुमने जूस भी पिया, टेट्रा पैक में पिया था, उसने काट के खाया था, पापा को भी दिया था, हमने किया था, ग्रीन एप्पल भी होता है, बता बता के हमको लैंग्वेज बढ़ानी। तो कोई भी चीज अगर हम 10 लाइन में बताने की चालू करेंगे तो लैंग्वेज की क्वालिटी उसके दिमाग में जाने लगेगी। जब वो रिसेप्टिव है तो ये लैंग्वेज भी सीखने लगेगा, क्योंकि हम कानून से स्टिमुलेशन दे रहे हैं। But one thing that people used to say, like we should not say much words because it will be too much overwhelming from them. They will not be able to pick up the what is important thing. Like, is it like so? डोंट फॉल फॉर दैट। 40 साल पहले कंसेप्ट था कि ऑटिज्म में बच्चे सुन के नहीं सीख सकते, विजुअल लर्निंग शुड बी डोमिनेंट, ऐसे 40 साल पहले कंसेप्ट था। पिछले 2013 का ऑटिज्म की डेफिनेशन भी बदल गई, तो हम उसको पढ़ना ही नहीं है उसमें। हमें ध्यान रखना कि एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड एवरी चाइल्ड कैन बी अ सक्सेस स्टोरी। All children are same, they are not looking, listening, following, understanding. So all children will show response the way we want to work on them. तो पहले हमें भाषा के बारे में जब हम बात करें, भाषा की इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें कहानियां सुनानी है, स्टोरी सुनानी। शुरू में जब हम कन्वर्सेशन बनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, रामायण, महाभारत, कृष्ण, हनुमान, गणपति, शिवाजी वाली, जिसमें होता है कि वो ऐसा गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हाँ हमने कहा, हाँ हम ऐसे किया, उसके बाद स्टोरी खत्म। कन्वर्सेशनल स्टोरीज होते हैं, हिस्ट्री और कन्वर्सेशन होते हैं। तो उससे बच्चे को समझते हैं कि हमको कन्वर्सेशन में बात करनी होती है, स्टोरी नाम की कंसेप्ट बनती है, तो लाइफ एक स्टोरी बनने लगती है। इस स्टोरी में हो गया एक्सपर्टीज, तो अगले लेवल की स्टोरी बनती है थोड़ी सी बुद्धि वाली स्टोरी, जिसे हम बोलते हैं कि पंचतंत्र वाली स्टोरीज है, ईसाब की फेबल्स वाली स्टोरी, जहाँ पे मोरल लेसन, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एट द एंड ऑफ द स्टोरी उसने ऐसा किया, अभी स्टोरी। तो बच्चे के दिमाग को हम स्टिमुलेट करें लेसन लेने के लिए स्टोरी के माध्यम से, ताकि बच्चे की एक पर्सनैलिटी बनने लगती है, जिसे हम बोलते हैं संस्कार क्लासेस में इसे तो होता है। जब हमारे Yes. बच्चे के पंचतंत्र समझने की स्टोरी बनते हैं, उसके बाद के 3 महीने होते हैं बच्चे के अकबर बिरबल और तेनालीरामन और मुल्ला नसरुद्दीन वाली स्टोरी सुनने के लिए, जिसमें लॉजिक होता है, हिडन ट्रिक होता है, मुझे तो पता नहीं ऐसे हुआ, तो बच्चे की लॉजिक बनने लगती है। जो नॉर्मली 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इसी तरह से ये 3 फेज के स्टोरीज हमको सुनाने की कोशिश करनी होती है। तो अगर आपके बच्चे का लेवल अकबर बिरबल के स्टोरीज सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चा ये सब चीजों के लिए तैयार नहीं। कहानियां बनेगी तभी पढ़ाई में मजा आएगा, कहानियां सुनने के लिए तैयार होगा तभी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा। जो बच्चा कहानियां समझता ही नहीं है तो आगे जाना मुश्किल है। तो हमें अभी से चालू करना, अभी भी हम स्टोरी चालू करेंगे, उसको पता चलना चाहिए, उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करना है कि हाँ इस तरह से सोचोगे तो कहानी का अर्थ अलग निकलता है। तो हम बोलते हैं कभी कभी अलग अलग मीनिंग से भी हम स्टोरी समझा सकते हैं, सेम स्टोरी अलग अलग लाइन में भी सिखा सकते हैं। इसीलिए मेथोलॉजिकल स्टोरीज हम पसंद करते हैं, क्योंकि एक ही स्टोरी बताने के राम ने जाके सीता को बचाया, लेकिन हम रोज बताते तो रोज अलग अलग लाइन आने लगते बीच में। तो जितनी हम डायनेमिसिटी, डाइवर्सिटी, डिफिकल्टी डालेंगे, उतनी लर्निंग फास्ट होगी और स्ट्रांग होगी। तो हमेशा अलग अलग चीजों से लर्निंग के लिए लोड दोगे तभी लर्निंग जाएगी। उसके लिए हमें लर्निंग के लिए बच्चे को तैयार भी करना, लर्निंग का इंटरेस्ट और कनेक्शन तभी बनेंगे जब वो कनेक्शन लेने के लिए सिग्नल्स दोगे, कनेक्शन बनने के लिए सिग्नल दोगे। हाँ यहाँ पे लाइट दिख रही है, चलो आओ आप सिग्नल ले लो। अंधेरे में घूम गए हो, कहाँ पे एक लाइट दिख रही है, बस आप उसी तरफ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि यही एक सिग्नल जो मिल रहा है। तो उसी तरह से एक ही स्टोरी आप सुनाते जाओगे बार बार अलग अलग तरीके से, तो उसकी लर्निंग भी डायनेमिक बनती जाएगी, क्योंकि उस तरह से सिग्नल्स मिल। Thank you so much, doctor. Okay, so quick time check. We have only 10 minutes, and I'm not sure whether we would be able to take all the questions. So जितने अभी possible हो सकते हैं वो हम लोग ले लेते हैं. You can tell me every question. I will try to answer only. Okay. So next question is from Mohit. So Mohit, I'm not following that. बोलेंगे जरा क्या है? आप अनम्यूट कर लो अपने को. मोहित साहनी. गुड आफ्टरनून जी. हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे टॉयज से खेलते हैं, तो क्या हमें एक बार ये सारों से उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए अगर हमने उसको कम्युनिकेशन के उसमें लाना है मोड में,
कि बिल्कुल टॉयज से बिल्कुल हटा देना है एक बार के लिए? देखो, खिलौने की उम्र होती है 2 साल तक का बच्चा, जी। 10 साल का बच्चा, आप रोज खिलौने देते बैठे तो कहाँ पे जा रहे हो आप? आगे जाने की सोच ही नहीं करेगा। जी जी जी। हमें हर एग्जाम में 35% पास होकर आगे निकलते जाना है हर स्टेप्स के ऊपर। हम तो खिलौने प्रॉब्लम, से परफेक्शन लेके बैठे हो तो कभी आगे नहीं जाएंगे। हमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, परसिस्टेंट डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जो वो बिहेवियर सेट हो चुका है जैसे, तो हमें उसे एक बार स्लोली रिमूव करना चाहिए बच्चों को, मतलब कैसे करना? आपको ऑब्जेक्ट ऑब्सेशन हम बोलने की कोशिश करें कि एक ही खिलौना लेके बार बार यूज कर रहा है जी अलग तरीके से, जी तो जी अनवांटेड चीज का पागलपन है ऑब्जेक्ट ऑब्सेशन। जी। एक रात में उसको बिना बताए समझाए गायब कर देनी वो सब चीजें जो आपको लगता है कि वो लेके घूमेगा। राइट। तो क्या होगा, अगले दिन सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा ढूंढने की कोशिश करेगा, अगर उसको उतना सेंस है तो। अगर नहीं तो नहीं उसको है। नहीं पड़ेगा। अगर सेंस है तो होता ढूंढने की कोशिश करेगा। है। जी। 2-4 घंटे रोएगा, राइट। पापा कहाँ भागे पूछेगा, नहीं जी जी। मिलते तो कुछ नहीं बिगड़ता है। अगले दिन से किसी और चीज में इंटरेस्ट लेने के लिए दिमाग चालू करो। बट ओके। इसी बात किसी और दूसरे वस्तु में तो उसका दिमाग गया। जी जी। ठीक है, अभी क्या है, डे टू डे लाइफ में सबके पास सिचुएशन होती है ना ऐसी। किसी की राइट राइट गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है तो क्या करेगा वो, 2-4 दिन रोएगा, 5 दिन के बाद नई गर्लफ्रेंड ढूंढते बैठेगा। राइट। तो ये सही है। छोटी छोटी चीजें हैं, छूट जाती है, आदतें छूट जाती है। यहाँ तो इसका तो मुझे लर्निंग कभी मिली जब कोलकाता में फ्लड्स आए थे बहुत सारे, कुछ राइट। साल। तो मेरे काफी पेरेंट्स थे वहां पे जो उनके बच्चों को ऑटिज्म था। तो राइट। सबने मुझे बोला कि मेरे बच्चों ने अनयूजुअली अच्छा बिहेवियर बताया क्योंकि वो स्ट्रेस में था। ओके। वो बिल्कुल क्योंकि मेरे को आपका वो पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल। सही लगा कि जैसे मतलब आप कह रहे हो कि वो सजीव से होगा तभी कनेक्शन बनेगा। मतलब हम कोई भी, अब जैसे मैं पार्क में इसको। आदमी की दुनिया में नहीं आ सकते, हम ह्यूमंस की दुनिया में नहीं आ सकते। मोबाइल के राइट। बारे में मुझे यही बात करनी थी। मोबाइल एक संवाद का माध्यम है, संवाद के लिए बनाया, कम्युनिकेशन के लिए बनाया, सोशलाइजेशन के लिए बनाया हुआ। जी जी जी। मोबाइल से तो ऑटिज्म निकल जाना चाहिए परमानेंटली। राइट। लेकिन अगर उसके बजाय हम खाली रिकॉर्डेड वीडियोस ढूंढते बैठते तो हम ऑटिज्म में घुस जाते। जी। तो रिपीटेशंस ऑटिज्म का हॉलमार्क है, निकाल दो रिकॉर्डेड वीडियोस ऑल रिपीटेशंस। ओके। विजुअल विजुअल दे रहे हो, अरे सुनना है तो हम आंख जाम से तो सुनना बंद हो रहा है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, बीवी चिल्ला रही है, अरे देखो तो सुनाई नहीं देगा, खाली घुस गए हो, तुम घुस गए हो। ओके ओके सर। तो बाहर इसलिए आना पड़ेगा, और मोबाइल का यूज करो डेली वीडियो कॉलिंग के लिए। डेली 5 ऑडियो कॉल्स, 1 मिनट वीडियो कॉल फॉर 5 डिफरेंट रिलेटिव्स। शादी का एल्बम निकालो, किसी भी 5 लोग को रोज वीडियो कॉल, हाय मेरा बच्चा हाय बोलने वाला है। 1 महीने में बच्चा सबको आई कॉन्टेक्ट देने लग सकता है। ठीक है सर। फैमिली बियॉन्ड फैमिली, फैमिली बियॉन्ड लाइफ, फैमिली बियॉन्ड हाउस, ये कंसेप्ट पनपने लगता है कि हाँ अपनी भी बड़ी फैमिली है, सबके साथ हम बात कर सकते हैं। सबके साथ मोबाइल इज अ मीडियम टू गिव आई कॉन्टेक्ट व्हेन यू मेक टू वीडियो कॉल्स। ओके Right. सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Okay. Thank you. Mathili. Hello, doctor. नमस्ते। Doctor, my question is my 3.5-year-old boy. Since the past 4 months, I have given no mobile, no TV, and I have increased reading books. He likes reading books. He points out all the words and says it. He has a speech delay. So I wanted to know whether should I continue reading more books because he pays attention and sits besides me. Should I increase book reading and bring more books in future? Does this help in increase speech? एवरीथिंग हेल्प्स ओन लेवल। इसलिए कल मुझे क्वेश्चन पूछा था, सब लेवल पे हेल्प करेगी क्या? पेट के लेवल के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगी, मैंने उसके आगे नहीं जाऊंगा। उसी तरह से बुक करेगी, तो कितने बुक से आप कितना ही सीखेगा वो। डजन्स में बुक लाने पड़ेंगे, हर हफ्ते नया बुक लाओगे तो ये हर हफ्ते के नए उस बुक के स्टोरी में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हर हफ्ते बुक दूसरों को डोनेट करना सिखाओगे तभी उसमें से वो संस्कार बनेंगे, क्वालिटी बनेगी। बुक्स का एक बढ़िया एडवांटेज होता है कि बुक्स में पत्ते पलटते पलटते स्टोरी बनने लगती है। तो लाइफ में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, लाइफ इज स्टोरी कंसेप्ट समझने लगता है। लेकिन अगर वही बुक 6 महीने से पढ़ा है तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हम उसको ऑब्जेक्ट ऑब्सेशन में घुसा रहे हैं। बुक्स ऐसे होने चाहिए, पिक्चर स्टोरी बुक्स होने चाहिए, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन बुक्स नहीं होनी चाहिए। स्टोरी बुक्स मतलब स्कूल की घंटी बजी, टीचर आ गए, बच्चे आ गए, तीसरे पेज पे चौथे पेज पे स्कूल छुटा, 5 सब घर गए, मम्मी को मिले, खाना खाया, स्टोरी बन रही है यहाँ पे।
फोनिक रीडर सीरीज जैसे होती है बुक्स की स्टोरी। तो बुक्स हम तभी देंगे जब बच्चे को हम खुद एंटरटेन नहीं कर पाते। एंटरटेन का मतलब खुद कम्युनिकेशन के थ्रू सिखा नहीं पाते। सो बुक्स of picture story books is a good medium to keep the child busy when you cannot give time to the child. जब हम बता सकते तो अमिताभ बच्चन का गाना पता है, मेरे पास और मेरे दोस्त का किस्सा सुनो, उस तरह से आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। शेर आ गया मुझे खा गया, बच्चे को स्टिमुलेट करो। अरे बच्चा शेर कैसे खा सकता है, आप तो जिंदा हो। तो जितना आप जान डालोगे उसके कम्युनिकेशन में सिखाने में, उतना बच्चा आपके एक्सप्रेशन कॉपी करने के लिए सीखेगा। क्योंकि हम लोग लाइफ में हर चीज कॉपी करके सीखते हैं, और जब हमारे IQ बनते हैं तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं। Right. Okay. Swati Satkar. Yeah. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी का स्पीच अभी आने लगा है, वो 8 इयर्स की हो गई अभी दिसंबर में, और उसका स्पीच ना ऐसा सेंटेंस में नहीं है, वन वर्ड का स्पीच है उसका। और स्टडी जो करती है ना वो ऐसा भूल जाती है, ऐसा ना करती है कोशिश, लेकिन ना ऐसा भूल बहुत जाती है, ध्यान में नहीं रहता उसका। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए? कोई भी चीज जो है, अगर हमें परफेक्ट बनना है किसी भी चीज में, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। हम एक ही बार में सिखाकर उसको परफेक्ट नहीं बना सकते, एक ही बार में सीखकर परफेक्ट भी नहीं हो सकते। तो जो भी चीज आपको लग रहा है कि बार बार मिस हो रहा है, उसको हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा। रिपीटेड उसी तरह के एक्सरसाइजेस देकर अलग अलग तरीके से। काफी बार दवाइयाँ सप्लीमेंट्स वगैरह हेल्प कर सकती है, लेकिन हमें पहले प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। कोई भी चीज परफेक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम उसके पीछे न भागकर कुछ और चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो चीज परफेक्ट नहीं हो रही। मैथ में कमजोरी है, हम हर बार इंग्लिश का ट्यूशन लगाए, 10वीं तक खाली इंग्लिश का ट्यूशन लगाए, मैथ के पीछे भागे ही नहीं, तो हम अभी एनआईओएस बोर्ड ढूंढ रहे हैं। तो जो वीक है, नॉर्मल ऐसा होता है डेवलपमेंट में, 15 साल की उम्र के पहले जो वीक है उसको स्ट्रांग करना है। 15 साल की उम्र के बाद जो स्ट्रांग है उसी को मेहनत लेनी है, वीक को बोल, क्योंकि उसके बाद समझा जाता है कि शायद ब्रेन आगे कुछ सीखने वाला है। तो कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा टेनिस में अच्छा है, पढ़ाई में कमजोर है, तो खाली टेनिस के क्लासेस लगाए। लेकिन अगर बच्चा 10-15 साल से नीचे है, तो बेसिक लाइफ अंडरस्टैंडिंग आने के लिए कुछ हद तक एजुकेशन जरूरी है। उतनी जो बच्चे में बिलो 5 इयर्स ऑफ एज लर्निंग में दिक्कत है, वो टेनिस में जाएगा तो भी लर्निंग में दिक्कत आएगी। जो 8-10 साल के बाद लर्निंग में दिक्कतें आती है, तो हम बोलेंगे हाँ, जो चॉइस तभी बनती है 10 साल के बाद, एक्सपर्टीज तभी बनते हैं 15 साल के बाद। तब हम बोलेंगे हाँ, तभी हम डिसाइड करेंगे कि Okay. So next is Sandhya Rao. हिमलता, आप नंबर आएगा। एक्चुअली और भी पेरेंट्स से पहले क्वेश्चन पूछे हैं, तो वी विल गो वन बाय वन। हाँ संध्या, आर यू देयर? अच्छी वाली चल रही ना, उंगली करने की आदत है, धीरे बोले। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। या संध्या, Sandhya, your voice is not audible if you are speaking. Anyway, we have finished an hour of our talk and discussions. Right. What I suggest is you can connect one line for asking further questions in the comment section on any of the Facebook page or YouTube, whether you are uploading this video. Right. That's what I'm thinking. So And you I can will. share the link with all the participants so that they will ask the remaining questions. Then I'll see to it that I will answer each and every question. Definitely, I will share with you, sir. And again, in next webinar, whenever we are meeting based on our availability, तो हम उन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। अगली बार हम बहुत हेलो कंट्रोवर्सी में जा सकते हैं। अभी तो हमने बेसिक बात है। There are a number of things. अगला टॉपिक हम रखेंगे कंट्रोवर्सीज इन ऑटिज्म। बोलिए। Doctor, to conclude this session, can you tell us as a parent, like what can be the process and what will be the goal? And as a doctor, when you suggest the medication to be started for the kids with autism, and how to improve this eye contact or receptive or expressive? Is there any activities like working with the kid in person? That is very important. But if you can conclude with at the end, that will be really helpful for us. Okay, so there were many questions in this question. Okay. Right.
जैसे मैंने बताया कि हमें बैठने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार करना है। बस हम इसी को गोल रखेंगे। बिठाएंगे कैसे? बैठने के लिए हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होना जरूरी है। बैठने के लिए सिटिंग में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। बैठने के लिए बैठाने वाला चाहिए, बैठने के लिए सिग्नल देने वाला भी चाहिए कि जिसके सामने बैठ के हम सीखें। तो ये सब होगा, एनवायरनमेंट बनेगा बैठने का, तभी हम बैठेंगे। घर में सब लोग चल रहे भागने, तो बच्चा बैठेगा, मैं बोलेगा मैं क्यों बैठूं? अगर घर में सब लोग जमीन पे बैठते क्रॉसली करके तो बोलेंगे हाँ फ्लोर टाइम है, तो बच्चा भी आपके साथ बैठने लगे। बच्चा हमेशा कंटिन्यूस एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहा है घर में, हम रास्ते में नीचे बैठेंगे तो कम से कम इसी बहाने आपको तो बोलेगा पापा बाद में हटो। लेकिन हम उसको एंजॉय करें, बेटा घूम रहा है तो फिर आगे नहीं जाएंगे। तो पहले जब तक हम कूदना, भागना, उछलना बंद नहीं करते हैं, तब तक हम बैठने में स्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी नहीं लाते। तो जब तक हम शरीर की स्थिरता नहीं लाएंगे, तब तक हम बुद्धि की और विचारों की स्थिरता नहीं ला पाते। तो सबसे पहले हमें देखना बैठ, जो सामने बैठा है आपको किसी भी बहाने से कभी ना कभी तो देखेगा आपकी तरफ। देखा मतलब हाँ, अभी इसकी आंखों के साथ खिलवाड़ कैसे करना है, नजर कैसे घुमाना है, नजर कैसे करना है, उसको कैसे पटाना है, वो आपका काम है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ऑटिज्म के बच्चे के साथ लड़की पटाने के बराबर होता है। सामने बैठो और उसको समझाने की कोशिश करो। ये सब के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमारा टॉपिक मेडिसिन में नहीं है। वही मेडिसिन वो डॉक्टर्स पे छोड़ दीजिए। मेडिसिन चालू करना या ना करना ये पेरेंट्स का काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। जरूरत पड़ी तो वो चालू करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करें। ये कैफेटेरिया अप्रोच नहीं कि मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, मुझे चाहिए कि हम जो चाहिए वो ले लेंगे, हमको वो ये थेरेपी, ऐसी बात नहीं है। आप हमें समझना है कि स्थिर होगा तभी वो समझेगा। तो स्थिर करने के लिए कुछ जरूरत है तो दैट योर डॉक्टर विल डिसाइड। और कोई भी एक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं होती, कोई भी एक मेडिसिन परमानेंट नहीं होती, कोई भी एक मेडिसिन जादू की छड़ी नहीं होती। जो भी हम मेडिसिन चालू करते हैं कभी कभार शांत करने के लिए, उसको डोसेस को टाइट्रेट करना पड़ता है एवरी वीक, ताकि आप एक महीने के अंदर कुछ लेवल तक पहुंचे, कि ताकि उस स्टेबिलिटी के साथ हम कुछ डेवलपमेंट करें। जैसे मैं बताऊंगा कि हर हाइपर एक्टिविटी इज लाइक ज्वालामुखी। जब तक हाइपर एक्टिविटी है कोई डेवलपमेंट नहीं बन पाती है उसे, ज्वालामुखी है तब तक वहां पे हम गार्डन नहीं बना पाते। सीलिंग पे ब्रिज भी बनाना है समुद्र में, तभी वो समुद्र के लहरों को रुका के वहां पे पिलर डालना पड़ता है, तभी हम ब्रिज बना पाते हैं वहां पे। लेकिन एक बार ब्रिज बनाने के बाद पिलर्स वहीं के वहीं रह जाते, बह नहीं जाते। उसी तरह से हाइपर एक्टिविटी को टेम्पररी शांत करके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, बेसमेंट बनाकर, ताकि हम वहां पे बंगला बना सकेंगे बाद में, चाहे कितने भी हाइपर एक्टिव। क्योंकि तब तक बच्चे में इतनी समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसे उछलूं, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों ऐसे मारूं। तो समझ आना जरूरी है। समझ आने के लिए, समझ लेने के लिए तैयारी होना जरूरी है। आगे उसी के लिए कनेक्ट होना जरूरी है। हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हम पेट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। ये तो अपना बच्चा है, बिल्कुल कर पाए। राइट सर, ओके। तो हम लोग बाकी क्वेश्चन सर सेपरेटली एड्रेस करते हैं, जैसा आपने बताया। आई विल अपलोड दोस क्वेश्चंस ओवर चैनल।